Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. The lecture I am going to upload is Discourse analysis of Abraham Lincoln's Gettysburg Speech. It is in the subject you can see visionary discourse, and for the students of BS English semester 5th. So the Gettysburg Speech of Abraham Lincoln, Discourse analysis. Here we are required to give a brief introduction of Abraham Lincoln. Okay, Abraham Lincoln served as 16th President of the United States of America from 4 March 1861 till his death, when he was assassinated on 15 April 1865. 16th President था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक वो सदर रहे. Indeed, he was the first Republican president, and he was elected twice during this period, but he couldn't complete his second tenure because he was assassinated. What are important with Lincoln? He led his people through the famous U.S. Civil War. United States of America, it passed through a catastrophic civil war from 1861 to 1865. इसी वॉर में अब्राहम लिंकन ने अपने साइड को लेट किया. द अमेरिकन पीपल जो उनके सपोर्टर थे, यूनियन कहलाते थे, अगेंस्ट द कन्फेडरेट्स जो उनकी मुखालिफिन थी. ठीक है, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. फिर उनकी जो टू इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी कि ही सक्सीडेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ फेडरेशन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सेकंड दैट ही एबॉलिश्ड स्लेवरी. ये दो चीज़ें दो अहम थी. Our slavery, that was the main issue of this war. तो उन्होंने इसे ख़त्म किया. फर्स्ट ये जो सिविल वार था ये इसी इशू पर था, but Lincoln was determined enough to abolish slavery through first the Emancipation Order, and then he was able to add a 13th Amendment to the Constitution of the United States of America, and in this way slavery was legally banned. तो ये उनकी अहम कामयाबियाँ है. Credit goes to him. Unfortunately, he was assassinated by John Wilkes Booth, a well-known actor and a Confederate spy from Maryland. उनको कत्ल किया गया 14 अप्रैल 1865 को. असल में उनको कत्ल किया गया था. एक वेल नोन एक्टर था, कंट्रेस जो उनके मुखालिफिन थे उनका स्पाई था और जिनका ताल्लुक मेरीलैंड के साथ था. विल्स बूथ भी आफ्टर अ कपल ऑफ वीक ही वाज किल्ड. नेक्स्ट, Gettysburg. Gettysburg is a town in Pennsylvania state of the United States of America, famous for national military park. ये चूंकि Gettysburg speech है तो you are required to know कि यार Gettysburg क्या है. तो it is a town. अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं उनमें एक पेंसिल्वेनिया है, तो वहाँ एक टाउन है. और आजकल एक्चुअली इट इज़ फेमस फॉर अ नेशनल मिलिट्री पार्क, और यहाँ ही वो सोल्जर नेशनल सिमेट्री के इफ्तिताह के मौके पर अब्राहम लिंकन ने ये स्पीच दिया था. सो this is why called the Gettysburg Address or speech. Okay, the Gettysburg speech. On November 19, 1863, President Abraham Lincoln delivered his most famous speech at the dedication of the National Cemetery at Gettysburg. ये Gettysburg में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था. ठीक है, जिस तरह कि मैंने बताया कि यहाँ एक नेशनल सिमेट्री या जो अमेरिकन सिविल वॉर में यहाँ Gettysburg में एक मशहूर लड़ाई हुई है, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जिन लोगों जो लोग जाँ बहक हुई उनके लिए यहाँ एक क़िता अर्ज़ी ओके एक पोर्शन ऑफ लैंड that was devoted and to be known as Soldiers National Cemetery.
तो इसी की इनाग्रेशन के लिए वो यहाँ मौजूद थे और इसी मौके पर उन्होंने ये स्पीच दिया है. And it is a very short speech, only 270 words. Okay, and within 2 minutes he had completed it. But it is the most comprehensive. Okay, और ये क्या है, इसने जिस तरह की मैंने आपको दिया है कि this iconic Gettysburg address transformed the Union cause into a struggle for liberty and equality. कि इस मुख्तसर तकरीर ने क्या है, इस सिविल वार का नक्शा तब्दील किया. ठीक है, और आज कल ये दुनिया की लिटरेरी हलकों में ये काफ़ी इस पर बहस होता है, एनालिसिस इसके होते हैं, और दुनिया की सारी महकूम अक़वाम के लिए दिस बिकेम एन इंस्पिरेशनल फोर्स. नेक्स्ट वन, the American Civil War. What was this war? Okay, the United States of America passed through a catastrophic civil war from 1861 to 1865. इस दौर में अमेरिका में एक civil war हुआ है, और indeed the war started a month later when Abraham Lincoln took oath as the President of the United States of America. ठीक है, तो अब्राहम लिंकन बल्कि उनके इख्तिदार में आने से पहले ही बाज़ स्टेट्स ने वो द फेडरेशन ऑफ अमेरिका से क्या किया था, अपना सेसेशन अनाउंस किया था, और ये जारी रहा. द वॉर इफेक्टिवली एंडेड ऑन अप्रैल 9, 1865 when Confederate General Robert E. Lee surrendered to Union General Ulysses S. Grant at the Battle of Appomattox Courthouse. ये क्या है, वार 1865 में ख़त्म हुआ. ठीक है, अप्रैल 9 इसका आखिरी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ कि जो उनकी लिंकन के मुखालिफिन थी, ओके, कन्फेडरेट्स अंडर रॉबर्ट ई ली सरेंडर उनकी फोर्सेस के सामने जो यूनियन कहलाते थे, जनरल यूलिसिस एस ग्रैंट के सामने, और ये बैटल एपोमेटिक्स कोर्ट हाउस के नाम से मशहूर है. सो इट मीन्स कि यार फ्रॉम 1861 to 1865. ओके, दिस इज द सिविल वॉर पीरियड इन द अमेरिकन हिस्ट्री. And this is a catastrophic war because you can see the casualty I have given, the figures I have given. Okay, there were more than 10,30,000 casualties. 3% of the population of the United States of America at those time. Okay, and the soldier deaths were 6,20,000 from both sides. Okay, but most of these soldiers died on account of diseases, serious diseases or chronic diseases. और क्या है, इस सोल्जर्स के 50,000 सिविलियन भी इसमें मरे हैं. ठीक है, बाकी जो इंजरीज हुई हैं, बाकी लोगों बाद में इसमें वो जा बहक हुई हैं जो इंजर्ड थे एंड दे सकम टू देयर इंजरीज. सो इसलिए ये एक डिस्ट्रक्टिव वॉर था अमेरिकन हिस्ट्री में. नेक्स्ट वन. Okay, now the question arises, so what was the issue? Okay, so the main issue was slavery. ये गुलामी का सिस्टम था. ये ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म की वजह से ये वह सिस्टम डेवलप हुआ था जो अफ्रीका से ब्लैक पीपल को लाया जाता था और उनको गुलाम बनाया गया था. तो क्या है कि इस ये स्लेवरी के there were certain states who wanted including Abraham Lincoln they wanted to abolish the system altogether, but there was certain state, particularly in the south, who didn't want the abolishment of this very slavery system because they told they viewed that their agriculture were particularly dependent upon those slaves.
कि उनके जो एग्रीकल्चर था उन पर उनका इन्हिसार था. So I have given to you the southern states led by President Jefferson Davis and were called Confederates. So the states who supported slavery, okay, they were mainly the states in the south of the United States of America. Okay, and these were some 11 states. और जेफरसन डेविस उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बना दिया था. These states had declared secession from United States of America. ठीक है. The northern states led by Abraham Lincoln and were called Union. जो जेफरसन डेविस के लोग थे, स्टेट्स थे, ठीक है, जो साउथ के वो कन्फेडरेट्स कहलाते थे, और जो नॉर्थ की थी लेड बाय अब्राहम लिंकन उनको यूनियन कहा जाता था. तो the Confederates announced secession from the Federation of the United States of America, which the northern states rejected. यानी Confederates का मौक़िफ़ ये था कि the American Constitution allowed them, okay, to declare their independence. इसलिए चूंकि गुलामी पर उनका मौक़िफ़ सख्त था, वो नहीं चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने अमेरिकन से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था. लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स यूनियन जो यूनाइटेड अमेरिका चाहते थे, उन्होंने इसको मुस्तरद किया. Among the Confederates, South Carolina was the first to announce secession, followed by other southern states like North Carolina, Virginia, Mississippi, Georgia, Florida and Texas. ये मुख्तलिफ साउथ की स्टेट्स थी, ये कन्फेडरेट्स कहलाते थे. The union included states like Maine, New York, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, and Connecticut, and Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey. तो ये नॉर्थ की स्टेट्स जो अमेरिकन की 50 स्टेट्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. तो जो सिसेशनिस्ट थी, दे वर मेनली ओके फ्रॉम साउथ. तो ये असल में ये दो पार्टीज थी. और मेन इशू स्लेवरी था. नेक्स्ट. Okay, another very important thing we have to note that the Gettysburg battle and what were its results. This is particularly you are required to know if you want to understand this free speech. The Gettysburg battle during the American Civil War is said to be the most important combat and indeed the turning point, okay, of this war. Before this, the Confederates had the upper hand, but now after this very Gettysburg battle, in which the Confederates forces led by General Robert E. Lee was defeated by Union's forces, Abraham Lincoln's forces led by Major General George Meade. Okay, यही गेटिसबर्ग में कन्फेडरेट्स का एक बहुत सख्त हमला हुआ था, और इस मुकाम पर जनरल जॉर्ज मीड की क़ियादत में अब्राहम लिंकन की जो यूनियन फोर्सेस थी, उन्होंने उस हमले को न सिर्फ पसपा किया, उनको शिकस्त दी. ठीक है, जनरल जॉर्ज मीड जिनको सिर्फ 3 दिन पहले रिप्लेस किया गया था, तो ये उनकी पहली अहम कामयाबी थी. एंड दिस वॉर बैटल चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ the American Civil War. Okay, this war lasted for 3 days from July 1st to July 3. 1863 में 1st July to 3rd July. ठीक है, and caused heavy losses to both sides. Both sides heavy losses थी. Unions की जो deaths थी, these were 23,000 and the Confederates lost to 28,000 men. तो आप देख सकते हैं कि यार 60,000 से ज़्यादा ये फौजी इसमें मरे. तो जाहिर है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था अमेरिकन सिविल वॉर का. अच्छा, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था गेटिसबर्ग बैटल कि जो 1st July to 3 July ये बैटल रहा, एंड 4th July was the victory day. ये फतह का दिन था 4th July. और 4th July अमेरिकन की तारीख में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि
4 जुलाई दैट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल, क्योंकि उनका जो इंडिपेंडेंस क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 4 जुलाई 1776। तो उनके साथ देयर वाज एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। अच्छा, अब इस गैटिसबर्ग बैटल के चंद महीने बाद यानी इन नवंबर, ठीक है, नवंबर 19, the people who had laid down their lives on the part of unions, okay, तो उन सोल्जर्स जो यहाँ वहां हुए थे यूनियन की तरफ से, उनके लिए a portion of land was dedicated so as to soldier national cemetery maybe constructed there। वहाँ उनका जो एक मकबरा उनके लिए बनाया जाना था कि to be the final resting place for those who had sacrificed their life for the unity of America। तो इसी मौके पर ये अब्राहम लिंकन स्पीच कर रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट आप जहन में रखिए। President Abraham Lincoln addressed the inaugurating ceremony of the National Cemetery, ठीक है, इस मौके पर ये स्पीच है, तो गेटिसबर्ग वॉर को अपने जहन में रखिए। नेक्स्ट, ओके, कॉपीज ऑफ द स्पीच, यानी इस स्पीच की कई 5 नॉन कॉपीज हैं, ठीक है, रिटन बाय लिंकन। The Library of Congress has 2 copies of the address. The Illinois State Historical Library has 1. Cornell University has 1, and 1 is in the Lincoln Room in the White House. So Lincoln Room जो White House में है, ठीक है, वहाँ है। मुख्तलिफ काफ़ी हैं, 5 नॉन काफ़ीस हैं, मसलन जो यहाँ मैंने दिया है, दिस इज अ काफ़ी कॉल्ड द ब्लिस कॉफी, ठीक है, और ये अलेक्जेंडर ब्लिस एक व्हाट वाज द स्टेपसन ऑफ हिस्टोरियन जॉर्ज बैंक्रॉफ्ट, ठीक है, तो ये जो काफी वर्जन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो दैट इज द ब्लिस कॉफी। जो अदर जो काफीज है इसमें है कॉपी है, ठीक है, एवरेज कॉपी मशहूर है, बैंक्रॉफ्ट की कॉपी है। असल में बैंक्रॉफ्ट की जो कॉपी थी अलेक्जेंडर ब्लिस का जो किया था, ये कैसे थे, ही वाज द स्टेपसन, हिज स्टेपसन। तो जॉर्ज बैंक्रॉफ्ट actually that copy was on 2 sides. Lincoln had written that copy on 2 sides, तो इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ा जा सकता था, और बैंक्रॉफ्ट उसे फंडराइजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था जो सोल्जर्स थे सिविल वार में, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए। ये याद रखनी चाहिए कि 1865 के बाद वो जो पीरियड है रिकंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाता है ये, तो इसलिए अलेक्जेंडर ब्लिस ने क्या लिंकन से रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक और काफी उनको लिख कर दी। एंड दिस इज indeed called to be the most authentic copy because this is the only copy signed and dated by Lincoln. Okay, and today it is at the Lincoln Room of the White House. White House के Lincoln Room में जो डिस्प्ले किया गया है Lincoln रूम में, तो ये वही कापी है, ब्लिस कापी है, और हम यहाँ वही करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन जितनी भी काफियां हैं उनमें थोड़ा फर्क है, ज्यादा नहीं है, लिटिल चेंजेस दिया, और उनके वर्ड में सिर्फ फर्क है, बेसिक थीम एंड मैसेज हैज बीन द सेम। नेक्स्ट, ओके, सो now there are certain terms reference to historical events inside this short speech, so some of them I am explaining to you. 407 years, yani Lincoln starts his very address from this very phrase, 407 years. 4 score, 1 score is equal to 20 years, okay, 20 years, so 4 score means 80 years, and 4 score and 7 years, so it means 87 years.
So he means 87 years ago. So what he is referring to? Okay, he refers to the U.S. Declaration of Independence, which was signed in July 1776. So he is actually referring to this very declaration. इस यहाँ जो 407 years है, इसका मतलब 1776 की तरफ इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ उनका इशारा है. Now the question arises, what was the U.S. Declaration of Independence? So, यानी यही डिस्कोर्स एनालिसिस में होते हैं कि एक टर्म से दूसरे टर्म वो इसकी तरफ वो लिंक पैदा हो जाता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है. U.S. Declaration of Independence was adopted by the Second Continental Congress on 4 July 1776, under which 13 colonial states of America announced independence from Great Britain. They announced their independence from the British Empire. The meeting was held in Philadelphia, Pennsylvania. Okay, this second Congress functioned as a de facto national government at the outset of the Revolutionary War by raising armies, directing strategies, appointing diplomats, and writing treaties. अमेरिका जो यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इसके तहत ये 13 स्टेट ने अपना इंडिपेंडेंट अनाउंस किया ब्रिटिश एम्पायर से. 4 जुलाई 1776 को इसको अडॉप्ट किया गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ हम हैं जो डिस्कस या फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट वाज द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस. ठीक है, तो actually the second continental congress was a meeting of delegates from the 13 colonies in America, okay, which were united in the American Revolutionary War. ये 13 states थी और उन्होंने क्या किया था कि यहाँ इस वक्त अमेरिका एक रिवोल्यूशनरी वार से गुजर रहा था. अमेरिकन जो स्टेट्स थे, ये रिवोल्यूशनरी वार क्या थी कि ये आज़ादी की एक जंग थी. असल में मसला क्या हुआ कि these were crucial period for the British government. British government was heavily involved in India. ये वो पीरियड है जब वो इंडिया में ज्यादातर इन्वॉल्व हैं. ठीक है, 60 और 70 के बीच और फिर 80 तक जाहिर है कि 1757 में सिराजुद्दौला ओके जो द बैटल एट प्लेसी हुआ, बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और फ्रेंच वर देयर मेन राइवल्स. और उस तरह जो इंडियन के बाद स्टेट्स थे, दे वर गिविंग टफ टाइम टू ब्रिटिशर. टीपू सुल्तान, सुल्तान हैदरी इस वक्त जो मैसूर का हुक्मरान था, तो वो था फिर टीपू सुल्तान. अब यहाँ ओके these events had heavily costed for the British government. These events had heavy cost for the British government. उनकी काफ़ी वसाइल उन्होंने ज़ाया किए. तो अब उन्होंने क्या किया, जो दूसरी कॉलोनीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ टैक्सेस इम्पोज किए और उनका प्ली था कि दे शुड शेयर ओके द बर्डन. सो अमेरिकन की जो स्टेट्स थी मुख्तलिफ, वहाँ भी उन्होंने टैक्स इम्पोज किए. मुख्तलिफ एक्ट्स लाए गए जिनको कोएर्सिव एक्ट्स कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड कोएर्सिव एक्ट्स. बट most of the states they rejected these enactments. They protested against. और इस तरह एक बोस्टन पार्टी का वाक़या है जिसमें एहतजाज किया गया और फिर क्या है कई लोग मरे भी. तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड. इन स्टेट्स का मौका भी था कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड नो राइट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द कॉलोनीज बिकॉज देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव्स of the colonies in the British Parliament. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तस्लीम नहीं किया और जो मुखालिफ तहरीक थी, जो प्रोटेस्ट था, उनको सरफरेज करना चाहा. तो फिर इसमें जो 13 स्टेट्स थी उन्होंने 1774 में एक मीटिंग किया. इसको हम फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं.
इसमें दे arranged a delegate which was sent to England to discuss matters with the British government, but the British government refused. So इसकी रिएक्शन में सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ये एक्चुअली मई 1775 में ये कन्वीन किया गया था और ये जारी रहा, ठीक है। तो यहाँ इस सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में फिर क्या किया कि देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम वर्जीनिया से एक बंदा था जिसका नाम था Richard Henry Lee. He submitted a resolution to the Second Continental Congress that the American state should declare their independence from British Empire. तो अब ये ली रेजोल्यूशन इसको हम कहते हैं। ली रेजोल्यूशन पर बहस करने के लिए और इसके तहत एक ड्राफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार करने के लिए क्या किया गया कि कमेटी बनाई गई जिसको कमेटी ऑफ 5 कहा जाता था, ठीक है। कमेटी ऑफ 5 जिनमें एडम्स और थॉमस जेफरसन जैसे लोग भी शामिल थे। अब जब ये रिज्यूम हुआ ये मीटिंग जुलाई में, ठीक है, तो ली रेजोल्यूशन was passed by the second Continental Congress on 2 July। 2 जुलाई को बाकायदा पर ली रेजोल्यूशन पास किया गया, यानी क्या गया कि इस पर वोटिंग हुई और ली रेजोल्यूशन में जो ड्राफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार किया गया था, डिक्लेरेशन तैयार किया गया था, उनको मंजूर किया गया कि हम अमेरिका से ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी का ऐलान करते हैं। लेकिन ये 2 जुलाई फिर कमेटी ऑफ 5 से कहा गया है कि इसकी वर्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जाए, वर्डिंग को ज्यादा बामानी बना दी जाए। तो फिर कमेटी ऑफ 5 ने वही किया और 4 जुलाई 1776 को ऐसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर कांग्रेस ने फॉर्मली अडॉप्ट किया और इस तरह उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। अब ये है कि यानी एक्चुअल जो रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ये 2 जुलाई को पास हुआ है, सिर्फ वर्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करके इसे फॉर्मल बनाकर, ठीक है। फिर कांग्रेस ने 4 जुलाई को इसे डिक्लेयर किया। तो अमेरिका में भी ये बहस होता है कि यार वी शुड सेलिब्रेट और इंडिपेंडेंस ऑन 2 जुलाई, जिस तरह की हमारे यहाँ होता है कि यार व्हाई अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ओके बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वो गिवन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 15 अगस्त, लेकिन हम 14 अगस्त को मनाते हैं। तो भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया के बहुत से ममालिक में इस तरह है। अमेरिका देखिए कि जो एक्चुअल रेजोल्यूशन है दैट इज पास्ड ऑन 2 जुलाई बट दे ऑब्जर्व देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 जुलाई। पाकिस्तान का जो मसला है कि वाकई 15 जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये भी है कि जो पावर है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये जो पावर ट्रांसफर किया गया ये 14 अगस्त को माउंटबेटन आए, 14 अगस्त को उन्होंने पावर ट्रांसफर किया, दस्तखत किए। तो जिम्मेदारियां एक दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हवाले किए। तो इसलिए वी सेलिब्रेट 14 अगस्त एज आवर इंडिपेंडेंस डे। So that is what the US Declaration of Independence। अच्छा, ये टाइम इस लेक्चर के लिए ख़त्म हो रहा है, तो मेन थीम एंड पैराग्राफ एनालिसिस के लिए नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 इस हवाले से, वो प्लीज़ लिसन टू दैट। थैंक यू।